Hello everyone. Today's topic is moral issues in cyberspace. Cyberspace में नैतिक मुद्दे. Media ethics is a section of applied ethics as I mentioned in the earlier video. उसमें भी मैंने आपको बताया था मीडिया एथिक्स क्या है और उसका मेन फंक्शन क्या है. वो मैं शॉर्ट में समराइज कर देती हूँ. Media ethics is a section of applied ethics that deals with the specific ethical principles and standards of media, including broadcast media, cinema, theater, print media, radio, television, internet, social media, etc. Along with them, there are there are many other terms which can connect to the media or media ethics. आपको इनके अलावा बहुत सारी terms मिलेंगी. The main use of media is to provide information, to entertain and to provide education. वैसे तो बहुत सारे काम हैं मीडिया के जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए भी हैं, लेकिन जो मेन फोकस है वो इंफॉर्मेशन है, देन एंटरटेनमेंट और फिर एजुकेशन. अलॉन्ग विद देम द मीडिया ऑल्सो डज वर्क ऑफ एडवर्टाइजमेंट. आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट भी मीडिया का एक बहुत बड़ा काम है. द मीडिया हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि वो जो रोल प्ले करता है वो अतुलनीय है, यानी कोई दूसरा नहीं कर सकता. टुडे वेरियस क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड ऑन ट्रूथ एंड मोरालिटी ऑफ व्हाट द मीडिया इज शोइंग अस. आज जो मीडिया हमें दिखा रहा है तो उसकी सत्यता पे और उसकी नैतिकता पर इतने प्रश्न उठाए जा रहे हैं और जो जायज़ भी हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया में अनैतिकता को दिखाती हैं. So, actually, media hides some part of the truth and bring facts in front of the public by appealing salt and pepper. नमक मिर्च लगा के कहा जाता है ना कि किसी खबर को वो रिप्रेजेंट करते हैं. So the media is not only communicating but also misleading the public. So the issue of infringement of privacy and confidentiality by the media also comes to the fore. अब आप देखो कि मीडिया जो दिखाती है, जिसके बारे में जो भी दिखाती है, सो जो एक बड़ा इशू है वो है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. ये अभी हम डिटेल में करेंगे. प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को तो हम करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी एक कई चीज़ें हैं जैसे कि करप्शन, स्कैंडल्स एंड मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ मीडिया हैव बिकम कॉमन नाउ. When the media works with fair value, it does not need any kind of regulation. But when it comes down to the ground of frivolity by sacrificing values, then it starts getting exposed as a problem. तो जब तक वो एक लिमिट में काम कर रही है, फेयर वैल्यू के साथ काम कर रही है, तब तक मीडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके रिप्रेजेंटेशन में, उसके फंक्शन में. बट जहाँ वैल्यू गिरना शुरू हो जाती हैं, मॉरल वैल्यूज़ गिरना शुरू हो जाती हैं, वहाँ प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगती हैं. तो जस्ट एज वैल्यू एंड आइडल्स आर नीडेड इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, इन द सेम वे द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी इज नेसेसरी इन द मीडिया वर्ल्ड ऑल्सो. So, the media has played an important role. As we know, the media has played an important role in the campaign of giving polio medicine or the work of spreading awareness about AIDS and other disease, awareness about the danger of smoking, and also the motivating people to vote, conducting sting operation on the corrupt person or politician. But
Nowadays, media is misleading the society in a greed of earning money. Truth is ignored. Now, when the fourth pillar, being influenced by corruption, becomes the voice of the big capitalist instead of the voice of common people, then what will be the future of democracy? It is necessary to consider this. So in media ethics, it has become imperative to find answer to some question like, is the impact of information in cyberspace negative or positive? What is right and wrong for internet users? What kind of information about a person should be presented to others? How should the information be protected in the computer system? How should privacy be maintained in field of internet? Who has the right to receive information and data in a cyber sector? So on. There are many questions regarding media ethics. और ये सारे सवाल ऐसे हैं जो हम सब कहीं ना कहीं इनका उत्तर खोजना चाहते हैं या हम इन सवालों से जूझ रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं. Although some problems have been solved with digital ID, encryption, etc., still analysis of many media related processes is necessary. Now, अगर हम कुछ इश्यूज की बात करें जो अभी इम्पॉर्टेंट इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन फर्स्ट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, टीआरपी और मॉरल और वी कैन से सोशल वैल्यू. क्या ज़रूरी है, चैनल की, न्यूज़पेपर की टीआरपी ज़्यादा ज़रूरी है या जो वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं वो क्या बढ़ाना चाहिए, टीआरपी बढ़ाना चाहिए या मॉरल वैल्यूज़ बढ़ाना चाहिए? सो it is not necessary that media can be successful in increasing the TRP of TV, news channel or sales of newspapers only by serving substandard content. Better concepts or content can also increase TRP और rating. ऐसा नहीं है कि जब आप कुछ एडल्ट कंटेंट या फिर हॉरर कंटेंट दिखाएंगे तभी टीआरपी बढ़ेगी. अच्छे कंटेंट से भी टीआरपी बढ़ सकती है. फॉर एग्जाम्पल we can take the example of Hindu text or religious texts like Ramayana, Mahabharata. The content in it is nothing new, but still it always has the power to increase TRP. जो बड़े बड़े विद्वान हुए उनके बारे में, जैसे कि महात्मा गांधी जी हैं, उनके बारे में, जो महान नेता हुए उनके बारे में दिखाना, तो ऐसा नहीं है कि आप इन्हें दिखाएंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे. A film like Godfather is still ranked in top 10 of the world commercial cinema. Therefore, it cannot be ruled that only ghost, item numbers, options, things in the media increase the TRP. So you have to ask the question कि आपको क्या चाहिए, आपको टीआरपी चाहिए या फिर मॉरल वैल्यूज चाहिए. दिस क्वेश्चन is important. Here, perhaps the question is not of TRP, but what is the media providing to the society? सवाल ये है कि मीडिया क्या दिखा रही है और हम क्या दिखना चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है. ये इन सवालों का जवाब हमें और आपको ढूंढना पड़ेगा. देन सेकंड इशू है that media has no right to take decision. किस तरह के decision? So as soon as the complaint is registered with the police, the media declares the person as terrorist, rapist, murderer, etc. आप देखते हैं कि आज के टाइम पे जो न्यूज़ कुछ इस तरह से सुनाई जाती है कि जिसने अपराध किया है वो बिना सजा पाए, बिना कोर्ट में गए ही अपराधी बन जाता है.
The person appears to have been guilty of that offense as soon as charge is made. So, the media hangs the person even before the court's decision. कि मीडिया ने ही डिक्लेयर कर दिया कि हाँ कोई रेपिस्ट है कि नहीं, हो सकता है वो इनोसेंट हो, उसे फंसाया गया हो, लेकिन आज देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पेड न्यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि हम सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स क्या है, इसमें डिफरेंस करना ही इतना मुश्किल हो गया है कि मीडिया हमें जो दिखाती है हम उसे ही सच मान लेते हैं और लोगों को गिल्टी होने देते हैं. So the question is, what is the real function of media? To show the element as it is, क्या important है, as it is or aggravates it, कि आप उसे बढ़ा चढ़ा कर बताएं and give its verdict before the court. कि मीडिया का काम ये नहीं है कि आप निर्णय लें, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप न्यूज़ को दिखाओ, बस आपका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है. अभी एक जो न्यू मूवी आई है, रिसेंटली ही आई है, आप नाम है धमाका, हाँ, और उसमें भी कहीं ना कहीं यही दिखाया गया है कि जो पेड न्यूज़ होते हैं उनसे जो कॉमन पीपल हैं उनको कितना नुकसान पहुंच सकता है, और कहीं ना कहीं इसका भुगतान एंकर्स को, न्यूज़ एंकर्स को या जो उसमें शामिल हैं उसमें उनको भी करना पड़ता है. नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी. ये एक बहुत मेजर इशू है मीडिया साइबर स्पेस में. So the exchange of information through the media has become so easy, which has a direct effect on the individual's own privacy, due to which there is a possibility of harmful incidents in that person's life. Publishing photographs, line repeat हो गई है. Publishing photographs raise ethical issues if the published photo is chosen to demean, harass, etc. So the author of the photographs here does not even know that his photo is being taken, and even if he had known, would he have agreed to be the photographed? कि कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी फ़ोटो ली गई है, और अगर चलो उन्हें पता भी चलता है तो क्या वो एग्री है अपनी फोटोग्राफ दिखाने के लिए? However, it is not necessary that every photo whose publication creates a risk in due to breach of confidentiality. But most of the time, it is difficult to maintain privacy of a person. Confidentiality has been defined as allowing oneself to be alone, the right to one's own body and personal space, freedom of one's own affair. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि आपका अपनी ज़िंदगी में पूरा अधिकार है और आप ही ये निर्णय लेंगे कि क्या आप पब्लिक करना चाहते हैं और क्या नहीं. इसका निर्णय कोई दूसरा नहीं ले सकता. लेकिन जब मीडिया बिना किसी परमिशन के आपका ये जो प्राइवेट कंटेंट है वो पब्लिक कर देती है, तो ये एक इशू रेज हो जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच का, जहाँ पे आपकी प्राइवेसी को ब्रेक किया जाता है. सो it is wrong in a way to publish what is private, and it is also wrong to search for personal items illegally, and it contradicts the social moral values. There are some views which are in favor of breach of confidentiality. We will discuss about these arguments. First is, when a person becomes a public figure, he definitely loses his privacy. तो पहला तर्क ये दिया जाता है कि जब कोई पर्सन नोन हो जाता है, प्रेस्टीजियस उसकी पर्सनालिटी हो जाती है, तो फेमस हो जाता है, तो उसे अपनी प्राइवेसी खोनी ही पड़ती है. कुछ लोग ये तर्क देते हैं. सो इट इज सेड दैट व्हेन अ पर्सन बिकम्स पब्लिक, he has great difficulty in keeping his life private. Everyone is very curious to know about him or his life.
Now the question is whether the public person should be allowed to keep the privacy of his private life. ये सवाल तो हमें करना ही पड़ेगा. Individuals who welcome a secretive life for their publicity and fame cannot complain that their privacy is now at risk. The general perception is that a public person has no right to keep the privacy of his life, but this fact is morally unacceptable because it is immoral that a public person should pay such a high price for his being public. There is no scope for any improvement here. कि पब्लिक होने का मतलब तो ये तो नहीं है ना कि आप अपनी लाइफ को प्राइवेट नहीं रख सकते. ये ऐसी तो कहीं कंडीशन नहीं लिखी हुई. तो अगर जो लोग ये तर्क देते हैं तो ये मॉरली अनएक्सेप्टेबल है. सेकेंड है when it is good for the most of the people or the benefit of the society, then someone's privacy should be breached. कि अगर किसी का भला हो रहा है, ज़्यादातर लोगों का भला हो रहा है या समाज का भला हो रहा है, तो किसी की अगर प्राइवेसी तोड़कर भला हो रहा है तो प्राइवेसी आप ब्रेक कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर सकते हैं. So to say that the status of a true public being comes only after the loss of private life is अनएक्सेप्टेबल. बट ये जो आर्ग्यूमेंट है इतना ईजिली एक्सेप्टेबल नहीं है. Before breaching someone's privacy for public benefit, it should be observed that what are included in the public benefit, such as investigation of criminal tendency of person, of any serious disease in the interest of public health, fraud investigation. कि अगर आप किसी की प्राइवेसी ब्रेक कर रहे हैं तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि आप किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में उसे ब्रीच कर रहे हैं. कि क्या किसी पर्सन की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो आप उसकी प्राइवेसी को ब्रेक कर रहे हैं, या कोई डिसीज़ है कि दूसरों को ना फैले इसलिए उसकी प्राइवेसी को डॉक्टर सपोज कॉम्प्रोमाइज़ करता है, या फिर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है. तो इसमें तो सोसाइटी का, लोगों का भला है. लेकिन बहुत बार प्राइवेसी इस तरह से ब्रेक होती है कि उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता. So, but that although known person's confidentiality is disclosed, it is not based on reasons given above, but mainly based on their sexual life. लेकिन ज़्यादातर जब प्राइवेसी ब्रेक होती है नॉन लोगों की, पॉलिटिशियन हो गए या एक्टर एक्ट्रेस हो गए, वो उनकी सेक्सुअल लाइफ पे ज़्यादा बेस्ड होती है, जिसमें सोसाइटी का या लोगों का एज सच कोई भी बेनिफिट नहीं होता. आई डोंट नो व्हाट कैन बी द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इन दिस सिचुएशन. एक्चुअली द आइडिया इज दैट, अब क्या है देखिए, आप उसको काउंटर फेवर आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं. एक्चुअली आइडिया इज दैट एनी काइंड ऑफ पर्सनल इमोरलिटी इनेबल्स द पर्सन फॉर पब्लिक ऑफिस. कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब आपके पर्सनल जो पर्सनालिटी होती है अगर उसमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं है तो आपके अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं है और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके काम पर भी पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन हु कैन चीट हिज वाइफ कैन ऑल्सो चीट हिज कंट्री. क्यों? क्योंकि वो आपके नेचर में है, धोखा देने की हैबिट आपके नेचर में है. तो सच अ पर्सन मे बी अ हिपोक्राइट बिकॉज he is something else in office and something else in his personal life. Therefore, his deed should be disclosed to the public. Such a person does not have attention or interest towards work. So, ये कई लोग तर्क देते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में बाकी लोगों को पता होना चाहिए. Then next argument है when people are interested to know someone's private life. अगर लोग रुचि रखते हैं तो उनके प्राइवेसी को ब्रेक करना चाहिए. बट ये आर्ग्यूमेंट उतना कंसिस्टेंट नहीं है. क्यों नहीं है ये उतना कंसिस्टेंट? एक्चुअली that breach of privacy is justified when the public is interested in knowing one's private life because it gives them pleasure.
यही है ना कि क्यों हम ब्रीच कर रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों को खुशी मिल रही है। इट इज़ मेनली द सब्जेक्ट, बट इट इज़ मेनली द सब्जेक्ट ऑफ मैगजीन, बॉलीवुड, मीडिया, गॉसिप्स। लेकिन ये जो प्राइवेट लाइफ है या जो प्राइवेसी ब्रीच होती है, ये एक गॉसिप फॉर्म है जो मीडिया को चाहिए, जो बॉलीवुड के बारे में है, एक्टर एक्ट्रेस के बारे में है। इसमें बेनिफिट क्या है? So, for example, the plastic surgery of actor actress, their marriages, their divorce. अभी आप देखो कि किसने सरोगेसी के थ्रू बच्चे गेन किए, या किसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई, किसका डाइवोर्स हुआ, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो ये सब ऐसी अ, ऐसी सिचुएशन हैं जिनके बारे में डिस्कशन करके आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ गॉसिप की कैटेगरी में आती हैं। तो इस सिर्फ इसलिए कि लोगों को खुशी मिल रही है, इसके बारे में मज़ा आ रहा है बात करके, किसी की प्राइवेसी को ब्रेक नहीं किया जा सकता। सो इन दिस सिचुएशन देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो ये कुछ मेन आर्ग्यूमेंट थे जो ये दिखाते हैं कि साइबर स्पेस में मॉरल इश्यूज क्या हैं और हमें उन्हें कैसे डील करना चाहिए। हैं तो बहुत सारे, बट ये फोकस इन मैंने इसमें इसलिए किया है क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी ये एक बहुत बड़ा इशू है। होपफुली शायद हम इसे एक सेपरेट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये भी कि मीडिया, हम सब ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मीडिया का जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा होता जा रहा है टाइम के साथ, जो एक बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है। थैंक यू सो मच।